Shalom, hallelujah. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus, hallelujah. सबको जय यीशु मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया। Shalom, 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 hallelujah. Shalom. The Lord bless you, Sister Anju. The Lord bless you. Hallelujah. Brother Ravi Prakash Gupta. The Almighty King of Glory bless you. Darshan Singh Ji, the Lord bless you. Hallelujah. I speak shalom over your lives. I speak Hased, the grace of God over your life. Tanuja said, I bind you with the blood covenant that Jesus put his signatures in his own blood. Harpal Bajwaji, I cover you under the blood of the Lamb. Lena Davidson, I cover you, your household, under the blood of Yahushua HaMashiach. I draw the hedge of the blood of Yahushua HaMashiach around your household, Lena Davidson, and your family. Glory to God. Jesus is awesome. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we bless you, bless you, bless you, bless you. Lord, we praise you. We glorify you, King of glory. Hallelujah. We magnify you, King of glory. We magnify you. Hallelujah. Magnify you. Magnify you. We magnify your name. Hallelujah. सब मिलके दुआ करें. Let's pray for the peace of Jerusalem. The Lord gave very specific, imperative word. He commanded us to pray for the peace of Jerusalem. You know, Jerusalem is the city that is mentioned in the Word of God several score times. The city that God has irrevocable love with. The city, the land that Lord God is married unto. The city, the land that God cherishes above all the nations of the earth. Hallelujah. And the city where the King of glory will establish his kingdom to rule in person, and we shall be with him. Hallelujah. वो शहर का नाम है यरूशलेम. दुआ करें सब. दुआ मंगोए मिलके सब दम बदम. दुआ मंगोए मिलके सब दम बदम. सलामत रहे शहर यरूशलेम. दुआ मंगो सब मिलके दम बदम. तेरे सारे वलगण, तेरे सब चौगान. तेरे सारे वलगण, तेरे सब चौगान. तेरे महलां विच होवे अमनो अमान. दुआ मंगो है मिलके सब दम बदम. मैंने कुछ गीत लिखे और गाए प्रभु के लिए. उनमें से एक गीत है बाय द रिवर्स ऑफ बैबलॉन. इंग्लिश में भी है. जब इसराइली लोगों को कबार रिवर के पास नबूकदनेस्सर बादशाह ने असीरी में बिठा दिया और उनके पकड़ने वाले बाबुल के सिपाही, बाबुल के ब्यूरोक्रेट्स उनसे बोलते हैं, सिंग अनटू अस द सॉन्ग्स ऑफ ज़ायन. हालेलुया. तो साम्स में वो कैसे कहते हैं. मैंने 7 गीत लिखे थे. प्रभु के सन्मुख उपवासों में 7 दिन के लिए बैठा था. प्रभु ने 7 गीत दिए जिन्हें मैंने गाया. हालेलुया. तो मैं वो गीत गाता हूँ.
सहून की याद में रोए बाबुल के दरिया के शोर, हमें रुलाए नगमे चाहे सितम करे घन घोर। सहून की याद में रोए बाबुल के दरिया के शोर, हमें रुलाए नगमे चाहे सितम करे घन घोर। ऐ यरूशलम तू शहर खुदा का अफजल तेरा नाम, ऐ यरूशलम तू शहर खुदा का अफजल तेरा नाम। हो रोशन तेरे कूचे गलियां हर सुबह और शाम, हो रोशन तेरे कूचे गलियां हर सुबह और शाम। भूलूं गर मैं अजमत तेरी तो ठहरूंगा चोर, हमें रुलाए नगमे गाए सितम करें घन घोर। सहून की याद में रोए बाबुल के दरिया के शोर, हमें रुलाए नगमे चाहे सितम करें घन घोर। हालेलुया। Thank you, Jesus. Lord, we bless you. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, we bless you. We surround Jerusalem with the songs of praise. May your angels surround Jerusalem, Lord. Lord, you invoked your name in Jerusalem. You married the land of Israel. Jerusalem is your bride, O King of glory. Hallelujah. सहून के गीत क्यों गाएं हम असीर पर आए देश। वो उनसे जवाब देके ये कहते हैं, सहून के गीत क्यों गाएं हम असीर पर आए देश। बरबत बीन बिरखों पे टांगे राग करें क्यों पेश। बरबत बीन बिरखों पे टांगे राग करें क्यों पेश। बिरहा की रात कटे प्रभु नाही भेज नहीं अब भोर। बिरहा की रात कटे प्रभु नाही भेज नहीं अब भोर। हमें रुलाएं नगमे चाहें सितम करें घन घोर। सहून के गीत क्यों गाएं हम बाबुल के दरिया के शोर। हमें रुलाएं नगमे चाहें सितम करें घन घोर। Father, in Yahoshua's holy, mighty and glorious name, we draw unto your throne of grace. Father, we thank you for the lavish access that you have provided us. Lord, that not like the old covenant, that we should draw nigh unto you with much trembling and fear, lest your sacred holy presence smite us. But now through the blood of the Lamb, precious blood oozed out of the glorious of Yahushua HaMashiach, that has been right on the Ark of the Covenant in the Holy of Holies, that is not constructed by human hands, but that glorious sanctuary whose maker is God. Our high priest ascended there, and he has already offered his precious blood,
And the blood of Yahushua HaMashiach has already paid for the justice of God. The blood of Yahushua absorbed all the punishment that entailed sin and unrighteousness, and Jesus has already satisfied the justice of God, the holy sacred nature of God, and He's already become the author of eternal salvation unto all who would call Him. People of all nations, people of all kindred, people of all tribe and tongues, as they would call upon His holy name, they will obtain salvation. Sozo, hallelujah, receive forgiveness of their sins and new life through His blood. Father, we thank you. Father, in Jesus' glorious name, we come before you. हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदावंद, हम बनी इसराइल को तेरे खून में छिपाते हैं। खुदावंद, यीशु के नाम में दुआ करते हैं, तेरे प्रोफेटिक पर्पसेस पूरे हों इज़राइल के लिए। खुदावंद, जो नबियों की मार्फत तूने कहा वो तेरा कलाम पूरा हो। खुदावंद, जो तेरी योजनाएं हैं, जो तेरे प्लान्स हैं इज़राइल के लिए, वो पूरे हों। खुदावंद, हम बनी इसराइल की डेस्टिनी को खोलते हैं, वो यहूशा हमशिया को पहचाने, उनकी आँख पे पड़ा पर्दा खुदावंद हट जाए, और जैसे सॉल ऑफ टर्सस की आँख से छिलके गिरे, वैसे उनकी आँख से भी छिलके गिरने पाएँ। खुदावंद, बनी इसराइल को तेरे खून में छिपाते हैं। हम मिल के आज इज़राइल के लिए दुआ मांगते हैं। हालेलुया, इज़राइल के लिए दुआ मांगते हैं। खुदावंद, हालेलुया, यहोशुआ हमशिया, खुदावंद, जिनको तूने प्रीडेस्टिन किया है, फोर ऑर्डेन किया, खुदावंद, उन तक अपना कलाम पहुंचा। हालेलुया, एक मासिव खुदावंद रिवाइवल, एक मासिव अवेकनिंग खुदावंद इज़राइल के गोत्रों के बीच में आए। तेरे जलाली नाम में ऐसी हम दुआ करते हैं। हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो यीशु मसीह, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद। तू भला है, तेरी करुणा सदा की है खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। है यरूशलेम तू खुदावंदा शहर, है यरूशलेम तू खुदावंदा शहर, तेरे बूहियां विच हुण खड़े ने साडे पैर, तेरे बूहियां विच हुण खड़े ने साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, ऐ यरूशलेम तू अजाए बनी, ऐ यरूशलेम तू अजाए बनी। तेरी सारी वासों है डाढ़ी घनी, तेरी सारी वासों है डाढ़ी घनी। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। Hallelujah. Lord Jesus, we bless Israel. Lord, we bless Israel. We pray for the peace of Jerusalem. Lord, your end time purposes that are hidden in Israel, may they be fulfilled, Father. Hallelujah. May the household of Israel that is scattered around the world make aliyah and return, Lord, to the promised land. For you bring them back to the promised land, Father, as you prophesied, as you purposed, as you planned, and as you unraveled through your prophets, Father. Hallelujah. खुदावंद, बनी इसराइल को तेरे खून में छिपाते हैं, तेरे लहू में खुदावंद बनी इसराइल के ऊपर तेरी बरकत को हम खोलते हैं। हालेलुया। तेरे खुदावंद जलाली मसा को हम खोलते हैं, तेरी हजूरी को खोलते हैं खुदावंद। हालेलुया,
हालेलुया, तेरा धन्यवाद हो खुदावन, तेरा धन्यवाद 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 हो खुदावन, तेरे नाम की महिमा हो खुदावन। हालेलुया, तेरी स्तुति करते हैं खुदावन, तेरी प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं खुदावन। हालेलुया, हालेलुया, तेरा नाम ऊंचा हो खुदावन, तेरे नाम को जलाल देते हैं खुदावन जी। हालेलुया खुदावन, तेरे कलाम पे जब हम मनन करते हैं, हालेलुया, तेरा आत्मा तेरे कलाम को हमारे ऊपर खोले खुदावन। यीशु मसीह, तेरा नाम ऊंचा हो। हालेलुया, यीशु मसीह के जलाली नाम में, आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर के जीवित कलाम पे मनन करें। हालेलुया, मेरे दिल में साम 1 पे हम शाम को मनन करेंगे। मेरे को एक और मेरे दिल में प्रभु ने वचन डाला जो आज सुबह मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। विल कंटिन्यू साम 1। साम 1 विल टेक at least 6 to 8 sessions. Hallelujah, when we go into the original root words and study their meaning. Hallelujah, तो अभी हम पढ़ते हैं हालेलुया परमेश्वर के कलाम में से एक वचन। दानियल नबी की किताब निकालिएगा, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर नंबर 11। जल्दी जल्दी पढ़िए, लिखिए वचन। दानियल की किताब उसका 11 अध्याय, उसका 36 और 37 वचन। दानियल नबी की पुस्तक, हालेलुया, दानियल की पुस्तक उसका 11 अध्याय, उसका 36 और 37 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे लिखा है, एंड द किंग शैल डू अकॉर्डिंग टू हिज विल, एंड ही शैल एक्सॉल्ट हिमसेल्फ एंड मैग्नीफाई हिमसेल्फ अबव एवरी गॉड, and shall speak marvelous things against the God of gods, and shall prosper till the indignation be accomplished, for that is determined shall be done। यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में दानियल आत्मा में देख रहा है एंटी क्राइस्ट को। आपको मालूम एंटी क्राइस्ट का लिटरल मीनिंग क्या है? एंटी क्राइस्ट का लिटरल मीनिंग ये नहीं है द वन हु अपोजेस क्राइस्ट। द ओरिजिनल सेंस एंटी क्राइस्ट की है द वन who presents himself in the place of Christ, जो मसीह की जगह अपने आप को पेश करता है, जो मसीह की जगह लेता है, जो मसीह जैसा अपने आप को दिखाता है। हालेलुया, वो है एंटी क्राइस्ट। हालेलुया। और इसके विषय में क्या लिखा है? दानियल लिखता है कि सभी देवताओं के ऊपर, जितने देवता होंगे जिनकी उपासना होती होगी उस समय, सबसे अपने आप को ऊपर रखेगा और बहुत बड़ी बड़ी बातें अपने विषय में बोलेगा और इज़राइल के जीवित परमेश्वर के विरोध में बोलेगा। और तब तक वो कामयाब रहेगा जब तक उसके क्रोध का, परमेश्वर के क्रोध का कटोरा भर ना जाए। आपको मालूम परमेश्वर ने इब्राहिम से क्या कहा? 15 अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक में, जब यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम से 5 तरह की कुर्बानियाँ लाने के लिए कहा और उसने वो कुर्बानियाँ रख दी जगवेदी के ऊपर, और अंधेरा छाने लगा और आकाश के परिंदे आके उस कुर्बानी को दूषित करने लगे। इब्राहिम को नींद आने लगी। ग्रेट स्टूपर फॉल अपॉन हिम एंड ही वॉज एब्सोल्युटली स्लगिश एंड स्लीपी। तो वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है कि एक बर्निंग टॉर्च, आग की जलती हुई मशाल, और एक अवन जिसमें से स्मोक निकल रहा था, दोनों उसके बीच में से निकल गए। मांस के टुकड़े जो रखे थे काट के, और जगवेदी जिसके चारों ओर लहू उंडेला गया था, उसके बीच में से, आपको मालूम, जलाली आग और जलाल का बादल, ये यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है। यहोवा परमेश्वर ने
इब्राहिम के साथ वाचा बांध ली। पुराने समय में अगर आप पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की पुस्तक में, उसके 36 चैप्टर में है, पुराने समय में जब वाचा बांधी जाती थी तो जगवेदी, बहुत बड़ी जगवेदी होती थी, पत्थर की बनाई जाती थी, जानवर के मांस के टुकड़े काट के रखे जाते थे और चारों ओर लहू उंडेला जाता था, चारों अलंगों पे, हॉर्न्स पे, और उसके बीच में जो रास्ता होता था, मांस के टुकड़े दोनों साइड पे रखे जाते थे, बीच में रास्ता छोड़ा जाता था, उस रास्ते को जानवर के लहू से रंग दिया जाता था और इस्राएली प्रजा, लेफ्ट राइट दोनों तरफ मांस के टुकड़े रखे हैं जानवर के और उस पथ को लहू से रंगा है। उस पथ के ऊपर इस्राएली लोग निकल के जाते थे चल के और अपने मुंह से ये कहते थे कि हे यहोवा परमेश्वर, यदि हम तेरी वाचा को तोड़ें तो हमारा हाल इस बछड़े के जैसा कर देना। सेल्फ इन्फ्लिक्टिंग कर्सेस वर प्रोनाउंस्ड। इफ दे ब्रोक द कवेनेंट then the judgment will fall, and judgment will be so vehemently severe that it will rip them through. तो ऐसे वाचा बांधी जाती थी, लेकिन वाचा दो पार्टीज बांधती थी। जो वाचा होती है, मैं किसी समय आपको वाचा के ऊपर एक सेशन करेंगे हम, ये बायलैटरल कवेनेंट है। बायलैटरल का मतलब दो पार्टीज म्यूचुअली एग्री होती हैं, एक एग्रीमेंट लिखा जाता है, उस एग्रीमेंट की क्लॉजेज के ऊपर दोनों पार्टीज सिग्नेचर करती हैं, वो बायलैटरल एग्रीमेंट होता है जिसे वाचा या कवेनेंट कहा जाता है। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने ये ऐसी अनूठी वाचा बांधी इब्राहिम के साथ। इब्राहिम सो गया, उंगलाने लगा। गॉड कट द कवेनेंट इन हिज ओन अथॉरिटी। इसीलिए इब्रानियों की पत्री लिखने वाला कहता है, यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, इब्राहिम इन ब्लेसिंग विल आई ब्लेस दी। जब वाचा बांधी जाती है तो सौगंध खाई जाती है, शपथ खाई जाती है, और जो ओथ ली जाती है जिसे स्वेरिंग कहते हैं, वो अपने से बड़े के नाम में होती है। अपने से बड़े के नाम में कसम खाई जाती है। यहोवा परमेश्वर से बड़ा कोई नहीं, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने अपनी ज़ात की कसम खा के कहा, मुझे मेरी ज़ात की सौगंध, इब्राहिम इन ब्लेसिंग विल आई ब्लेस दी। दिस इज कॉल्ड यूनिलैटरल कवेनेंट, दिस वॉज नॉट बायलैटरल कवेनेंट। ये एक पक्षीय वाचा थी। हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर ने क्या कहा? यहोवा परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, तेरी कौम, अभी इब्राहिम के बच्चा भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसे बता रहा है, तेरी कौम, तेरा राष्ट्र, तेरी संतानें, तेरे में से निकलने वाला देश इज़राइल, वो 400 साल गुलामी में रहेगा। तब तक रहेगा जब तक अमालेकियों के पाप का घड़ा ना भर जाए। कई बार परमेश्वर अपने लोगों को पृथ्वी की कौमों के द्वारा, जातियों के द्वारा, पृथ्वी के राष्ट्रों के द्वारा, गवर्नमेंट्स के द्वारा इसलिए दुख दिलवाता है ताकि उनका न्याय करे परमेश्वर, उनके पाप का घड़ा भरे। यहाँ पे लिखा है, वो यहोवा परमेश्वर के विरोध में बोलेगा, एंड शैल प्रॉस्पर टिल द इंडिग्नेशन बी अकम्प्लिश्ड, फॉर दैट इज डिटर्मिन्ड शैल बी डन। हालेलुया। नीदर शैल ही रिगार्ड गॉड ऑफ हिज फादर्स, नॉर डिजायर द women, नॉर रिगार्ड एनी गॉड, फॉर ही शैल मैग्निफाई हिमसेल्फ अबव ऑल। एंड्रोजनस होगा वो। आपको मालूम, अभी जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले हैं, जो कल्टिक दुनिया वाले हैं, जिसके अंदर फेमिनिन मूवमेंट भी है, दे आर टॉकिंग अबाउट गॉड बीइंग एंड्रोजनस। एक ऐसी फिलॉसफी आ रही है, ऐसी झूठी तलीम कलीसिया के अंदर आ रही है, दैट गॉड इज एन एंड्रोजनस गॉड। वहाँ पे वो सिखाते हैं यीशु मसीह और शेकाइना ग्लोरी। शेकाइना का मतलब फीमेल होली स्पिरिट। बाइबल में पवित्र आत्मा के लिए कहीं भी वर्ड शेकाइना नहीं है। ये कबालिस्टिक लोगों की कंट्रीब्यूशन है। ये कल्ट के लोग, जो डार्क कल्ट के लोग हैं, अकल्टिक लोग हैं, जो कबाला करते हैं, विच क्राफ्ट, सॉर्सरी वाले डार्क डोमेन के लोग हैं, वो
शिकाइना वर्ड यूज करते हैं। मैंने कई पास्टरों को देखा शिकाइना वर्ड यूज करते। इन द ओल्ड एंड द न्यू देयर इज नो टाइटल गिवन टू द होली स्पिरिट एज शिकाइना। शिकाइना इज अ फीमेल नाउन। ये जो शैतानी चर्च है, डार्क चर्च है, उसके अंदर होली स्पिरिट को शिकाइना बोला जाता है। और जो एंटी क्राइस्ट है यहाँ लिखा जा रहा है वो हेट्रोसेक्सुअल है, बायसेक्सुअल है, ऑल सेक्सुअल है। ही हैज़ नो इंक्लिनेशन फॉर वुमेन, एंड्रोजनस। खैर मैं अभी इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। ये बहुत सारी बातें हैं जो घट रही हैं जिसको कलीसिया बिल्कुल भी जानती नहीं है। कलीसिया को इसका जरा भी इल्म नहीं है। तो यहाँ पे बताया गया है एंटी क्राइस्ट के विषय में। हालेलुया। वो आएगा और आके अपनी किंगडम, अपनी डोमेन एस्टैब्लिश करेगा। उसकी किंगडम को एस्टैब्लिश करने के लिए लूसीफेरियन लोग लगे हैं इस समय। लूसीफेरियन सोसाइटीज़ जो अमेरिका की पॉलिटिक्स में हैं, जो इज़राइल की पॉलिटिक्स में हैं, जो यूरोपियन यूनियन के अंदर हैं, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, जो इलीट लोग हैं, फ्री मेसनरी हैं, जो इल्यूमिनाटी हैं, जो नोबल ब्लड लाइन्स हैं, ये लोग दुनिया को अपने सिस्टम से चला रहे हैं। हालेलुया। हम पढ़ते हैं नूह के समय के विषय में। गॉड डिस्ट्रॉयड द वर्ल्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ नोहा। पूरी दुनिया को परमेश्वर ने नूह के समय डिस्ट्रॉय कर दिया। परमेश्वर ने कहा, मैन इज फ्लैश, मैन इज जस्ट डस्ट, माई स्पिरिट शैल नॉट स्ट्राइव फॉर एवर अगेंस्ट मैन, एंड हिज डेज शैल बी 120. And that 120, God speaks in terms of jubilees. God said that there will be 120 jubilees given to mankind. Jubilee is 50 years. So 120 jubilees mean 6,000 years. He gave a span to the mankind on the earth to run its own kingdom for the space of 6,000 years. 6,000 साल मनुष्य के लिए मुकर्रर किए गए और परमेश्वर ने उस दुनिया को जल प्रलय भेज के नष्ट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो मिंगल्ड सीड था, वो हाइब्रिड थे, नफलीम थे, गिबरीम थे, इलोए थे। ह्यूमन डीएनए को टेम्पर किया जा रहा था और जो परमेश्वर का सिग्नेचर है इंसान के डीएनए में, हमारे अंदर परमेश्वर के 3.5 ट्रिलियन सिग्नेचर्स हैं। हमारी बॉडी के अंदर 3.5 ट्रिलियन जीनोम्स हैं, डीएनए, आरएनए है जिसके ऊपर यहोवा का सिग्नेचर है, जिसमें यहोवा की इमेज, परमेश्वर की शक्ल और सूरत वास करती है। उसे शैतान मिटाना चाहता था, तो परमेश्वर ने जल प्रलय से सारे नफलीमों का, हाइब्रिड का, इलोए का, सबका विनाश कर दिया यहोवा परमेश्वर ने। हालेलुया। लेकिन शैतान ने फिर क्या किया? शैतान निम्रोद नाम के व्यक्ति के अंदर घुस गया। उसका नाम था निम्रोद। हालेलुया। और वो क्या कर रहा था? उसने पूरी दुनिया को यूनिफाई किया। ही वॉज अ ग्रेट लीडर। और मैंने आपको बताया था जेनेसिस चैप्टर नंबर 10 में कि निम्रोद बिगैन टू बी अ माइटी हंटर बिफोर द लॉर्ड। निम्रोद बिगैन टू बी अ माइटी हंटर। जो वर्ड है बिगैन टू बी, वो हिब्रू वर्ड है खलाल। अगर आप उसका रूट ढूंढेंगे खलाल वर्ड का, 2 डिफरेंट हिब्रू और अरामिक वर्ड में उसकी रूट है। दैट वर्ड खलाल मीन्स जेनेटिक म्यूटेशन। उसने अपने आप को जेनेटिकली मॉडिफाई कर लिया था निम्रोद ने। निम्रोद could live for a long span of life, and he was partly human and partly Nephilim. ये है वहाँ का मतलब। He began to be a mighty hunter. began के लिए जो हिब्रू वर्ड है उसका मतलब ये है। हालेलुया। तो आज जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो अद्भुत बात क्या है? लूसीफर, जिसका असली नाम हिलियल है और लैटिन में उसे लूसीफर कहा गया है। मैंने आपको बताया बेन शखार है वो। ही इज़ सन ऑफ शखार। शखार कौन है? शखार एक गॉड है, प्राइमोडियल गॉड, जो मॉर्निंग को डिक्टेट करता है।
बैन शखार हिब्रू वर्ड है वहाँ पे। इज़िकियल नबी की पुस्तक उसके 28 अध्याय में और यशाया नबी की पुस्तक उसके 14 अध्याय में उसे कहा गया बैन शखार, लूसीफर को, हीलियल को। हालेलुया। तो उसके हृदय में क्या कामना है? लूका आप पढ़िएगा इज़िकियल नबी की पुस्तक 28, इज़िकियल 28, 13 एंड 14। इज़िकियल नबी की किताब उसका 28 अध्याय, इज़िकियल 28 और उसका 13-14 वचन पढ़िएगा मेरे साथ। इज़िकियल 28 और 13-14 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ, सुनिए। ये लूसीफर के विषय में लिखा गया है। दाउ हैस बीन इन ईडन द गार्डन ऑफ गॉड। तू कहाँ था? अदन में था, यहोवा के अदन में। तो ये अदन जो है, ये अदन परमेश्वर ने इटर्निटी में बनाया होगा, क्योंकि ये अदन जो है गार्डन ऑफ ईडन, ये पृथ्वी पे नहीं बनाया गया। यहोवा ने इसे पृथ्वी पे ला के रखा है। ये देखिए यहाँ पे, दाउ हैज़ बीन इन द ईडन द गार्डन ऑफ गॉड। ये एडम से पहले की बात है, जब एंजालिक दुनिया यहोवा ने बनाई है, उस समय गार्डन ऑफ ईडन को बनाया है। और गार्डन ऑफ ईडन किसी और डिमेंशन में है। हालेलुया। पृथ्वी पे नहीं है। बाद में यहोवा ऐसे पृथ्वी पे उतारता है, पृथ्वी पर लेकर आता है और उस बाग में आदम को रखता है। इस एडन के अंदर कौन था? लूसीफर, जिसे हीलियल कहा गया। एवरी प्रेशियस स्टोन वॉज दाई कवरिंग। अलग अलग स्टोन्स हैं उसके, 9 स्टोन्स हैं, 10th गोल्ड है। उसको 10 स्किन्स मिली हैं। हमारे को तो एक स्किन मिली है ना, ये बड़ी कमज़ोर सी है, कट लग जाए फट जाती है, ब्लड निकलने लगता है। इसको यहोवा परमेश्वर ने कीमती पत्थरों की स्किन्स दी हैं और गोल्ड दिया है, और फिर परमेश्वर ने उसे सिंथेसाइज़र बनाया है, उसके अंदर सारे साज बनाए हैं। 14 वचन में लिखा, दाउ आर्ट the anointed cherub that covereth, and I have set thee so. Thou wast upon the holy mountain of God. Thou hast walked up and down in the midst of the stones of fire. ये stones of fire जो हैं, ये angelic being हैं। परमेश्वर ने, I do not know how many dimensions of angels God created. Nobody can know it. Only God knows it. ये जो living stones हैं, ये आग के पत्थर हैं, ये अलग किस्म के एंजेलिक बीइंग है। इनके बीच में ये चलता फिरता था। दाउ वॉज परफेक्ट इन दाई वेज फ्रॉम द डे दाउ वॉज क्रिएटेड। ये क्रिएटेड बीइंग है, इसे यहोवा ने बनाया है। ये चरब है, चरबीम है ये। लेकिन इसके अंदर क्या लिखा? टिल इनिक्विटी वॉज फाउंड इन दी। क्या इसके अंदर निकला? अवान, इनिक्विटी। तो मैं आपको सिखा रहा था, इनिक्विटी इंसान के डीएनए में रहती है, जाके जीनोम्स में रहती है इनिक्विटी। इनिक्विटी आपके बोन मैरो के अंदर घुसना चाहती है, क्योंकि बोन मैरो के अंदर यहोवा अपने कलाम को भेजता है। हालेलुया। हड्डी हड्डी और गूदे गूदे को चीरता है यहोवा का कलाम। हालेलुया। तो इसके दिल में तमन्ना क्या थी? क्यों इनिक्विटी पाई गई? क्योंकि ये चाहता था कि यहोवा के एंजल इसकी वर्शिप करें। स्वर्ग में यहोवा की उपासना होती थी और यहोवा के इकलौते पुत्र यीशु मसीह की उपासना होती थी। तो शैतान भी चाहता था कि उसकी भी पूजा की जाए, उपासना की जाए, आराधना की जाए। पढ़िए आप यशाया नबी की पुस्तक 14 अध्याय का 13 वचन। वो परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर अपना सिंहासन लगाना चाहता था। परमेश्वर के सिंहासन के ऊपर, परमेश्वर की तरह उसके हृदय में वर्शिप चाहता। हमारा परमेश्वर वर्शिप हंगरी परमेश्वर नहीं है, लेकिन शैतान के अंदर आराधना की, उसकी पूजा की जाए, उसकी परस्तिश की जाए, उसकी इबादत की जाए, ऐसी कामना उसके अंदर थी। इसीलिए मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 8 वचन से 10 वचन को पढ़ें। मत्ती 4 उसके 8 से 10, लूका 4 उसके 5 से 8 पढ़ें। यीशु मसीह को शैतान अजमाने आता है। देखिए उसकी जुर्रत, जिसने कायनात को अपने मुंह के कलाम से पैदा किया है। हालेलुया। उसे अजमाने के लिए शैतान आता है और यीशु मसीह को क्या ऑफर देता है कि झुक के मेरे आगे मेरी इबादत कर। तो दुनिया की सारी सल्तनतें,
दुनिया की सारी बादशाहियाँ, दुनिया का सारा जलाल मैं तुझे दे दूँगा। ये यीशु मसीह को भी ऑफ़र किया उसने। आपको मालूम, हम पढ़ते हैं उस व्यक्ति के विषय में जिसके अंदर लश्कर रहता था, जो नंगा कब्रों में घूमता था। आपको मालूम कब्रों में क्यों घूमता था? कब्रों में बदरूएँ उनको से लेके इसलिए घूमती थी क्योंकि कब्रों में लोग निक्रोमेंसी करते थे, मुर्दों से बातें करते थे। बदरूओं से, मरे हों कि बदरूओं से बातें किया करते थे। तो यीशु मसीह उसको नया जीवन देता है। जब यीशु मसीह उसमें से दुष्ट आत्मा निकालता है तो बदरूएँ क्या कहती हैं? वचन को पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा थे begged him. Demons begged Jesus that he would let them enter into the swine. बदरूओं ने यीशु मसीह से बेनती की कि हमें सूरों के अंदर जाने दो। आपको मालूम सूरों के अंदर क्यों जाने के लिए बेनती की बदरूओं ने? क्योंकि उस टेरिटरी में, वो इज़राइल का इलाका नहीं था, उस टेरिटरी के पास जो इलाका था गैडरीन का, वहाँ पे जूस देवता का एक टेम्पल था। जूस यूनानियों का देवता है और लेजेंड ये कहते हैं कि जूस के द्वारा ही अलेक्जेंडर द ग्रेट पैदा हुआ। सिकंदर की माता के साथ जूस ने संबंध बनाया। एटलस भी उसकी औलाद है, हरक्यूलिस, एटलस, ये सब जूस से पैदा हुए हैं। तो जूस को सूअर चढ़ते थे, तो बदरूओं ने यीशु मसीह के आगे बेनती की हमें सूरों में जाने दो। यीशु मसीह ने बदरूओं की भी बेनती सुन ली। हालेलुया, वो इतना दयालु है। सूरों के अंदर बदरूएं जाना चाहती थी क्योंकि सूरों को चढ़ाया जाता था जूस देवता के आगे और सूरों की भी पूजा होती थी। तो बदरूएं भी पूजा चाहती हैं, इबादत चाहती हैं। प्रभु यीशु कहते हैं लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 18 वचन में, यीशु मसीह कहते हैं, बिहोल्ड आई सॉ सेटन फॉल लाइक लाइटनिंग। मैंने शैतान को बिजली की तरह स्वर्ग से गिरते देखा। उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय के 1 वचन में लिखा है, बेरशत 12 एलोहीम एत हशमाइम व एत हाअरेट्स। हिब्रू भाषा में ऐसे लिखा है, आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाशों की रचना की। और दूसरे वचन में लिखा है, नाउ द अर्थ बिकेम वॉइड एंड फॉर्मलेस। हिब्रू वर्ड है तुहु बुहु, पूरी कायनात तुहु बुहु हो गई। तो उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 1 वचन, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय का 2 वचन, इसके बीच में शैतान ने रिबेलियन किया है और उसे यहोवा ने गिराया। उसके गिराए जाने से पूरी कायनात में पहला फ्लड आया है, सब कुछ जल विलीन हो गया। यीशु मसीह कहते हैं मैंने उसे बिजली की तरह गिरते देखा है, इबलीस को। हालेलुया। और अब वो क्या करता है? क्या करता है शैतान? शैतान पूरी दुनिया को भरमाता है, पूरी संसार को भरमा रहा है। आपको मालूम पृथ्वी का जो सर्कमफेरेंस है, जो वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी की जो परिधि है, सर्कमफेरेंस है, इक्वेटर पे 25,000 मील है, लेकिन मिलियंस एंड मिलियंस, करोड़ों मील इसके अंदर धरती है, करोड़ों मील, और करोड़ों करोड़ों मील में समुद्रों का पानी भरा हुआ है। अब इतनी विराट पृथ्वी है, बाकी ब्रह्मांडों की मैं बात नहीं कर रहा, बाकी गैलेक्सीज की, सौरमंडल की बात नहीं कर रहा मैं, वो तो मतलब मनुष्य की समझ से परे की बात है। इतना विराट संसार को यहोवा परमेश्वर ने बनाया है। शैतान एक समय पे एक ही जगह हो सकता है। शैतान सर्वव्यापी नहीं है, सुन लीजिए ध्यान से। शैतान सर्वव्यापी नहीं है, शैतान सर्वज्ञानी नहीं है, उसे सब कुछ मालूम नहीं है। शैतान सर्वशक्तिमान नहीं है, सर्वव्यापी, हर जगह हर समय मौजूद है प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, यहोवा परमेश्वर। सर्वज्ञानी यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा है। सर्वशक्तिमान यहोवा है, प्रभु यीशु मसीह है, और पवित्र आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान जो है, वचन बताता है, उसे यहोवा ने गिरा दिया। तो अब अगर हम पढ़ते हैं इफिसियों की पत्री 2 अध्याय का 2 वचन, प्रेरित पौलुस क्या लिखता है वहाँ पे? ही इज़ द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। वो ये जो हवा है, फ़ज़ा है, जो पहला हेवन है, फर्स्ट हेवन,
एटमॉस्फेरिक हेवन जो है, इसकी हवा के ऊपर उसका कंट्रोल है। और जो सेकंड हेवन है, स्टारी वर्ल्ड, वचन में लिखा है वो रकिया जो है, दोनों के बीच में रकिया, फर्मामेंट, जहाँ पे पहले पानी रहता था, जो नूह के फ्लड के समय सारा नीचे आ गया। फर्मामेंट जिसे बाइबल में लिखा है इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 12 वचन में प्रेरित पौलुस कहता है कि वो प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार, डोमिनियन, पावर्स, प्रिंसिपैलिटी, स्पिरिचुअल विकेडनेस जो हेवनली प्लेसेस में, ये हेवनली प्लेस का मतलब स्वर्ग नहीं है, ये सेकंड हेवन है, रकिया, उस जगह पे ये सारी शैतानी ताकतें हैं। हालेलुया। तो मैं आज आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ, शैतान ऑपरेट करने के लिए पृथ्वी पे, ब्रह्मांड को कंट्रोल करने के लिए कहाँ पे शैतान अपना हेडक्वार्टर बनाता है, कहाँ बनाता है? प्रभु का वचन बताता है, अगर आप पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय का 10 वचन, वो अभी भी उसके पास एक्सेस है, बेशक लिमिटेड एक्सेस है लेकिन एक्सेस है। वो परमेश्वर की हजूरी में, अब परमेश्वर कहाँ उसे आने की परमिशन देता है ये मैं नहीं कह सकता, स्वर्ग में उसे जाने की परमिशन देता है, लेकिन इतना ज़रूर है कि वो परमेश्वर के जो कोर्ट रूम है वहाँ तक पहुँचता है। रेवलेशन 12:10 में लिखा है, ही एक्यूजेज द पीपल ऑफ गॉड डे एंड नाइट। सेटन हैज़ एन असाइनमेंट दैट ही कंटिन्यूअली डज, ही एक्यूजेज the brethren of the Lord Jesus Christ, the believer, true believer को एक्यूज करता है परमेश्वर की उपस्थिति में। प्रकाशित वाक्य 12:10 में लिखा है डे एंड नाइट। हालेलुया। आप पढ़ सकते हैं अय्यूब की पुस्तक के पहले अध्याय में, वो कैसे बनाए इलोहीमों के साथ, परमेश्वर के दूतों के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में जाता है और वहाँ कोर्ट रूम में एक्यूज करता है, स्लेंडर करता है। आपको मालूम, सेटन का जो नाम हिब्रू और ग्रीक में, हिब्रू में हसथान और ग्रीक में डियाबोलोस और हसथान, दोनों का मतलब एक ही है, दोष लगाने वाला। उसकी एक्सेस है हेडीज में, नरक में है, टाटरस में है, पृथ्वी की निचली स्थाओं में है, आकाश के अंदर है और स्वर्ग में भी लिमिटेड एक्सेस है। हालेलुया। तो वो उसने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? परमेश्वर के कलाम में क्या लिखा है? कहाँ अपना हेडक्वार्टर बनाता है वो? कहाँ से पृथ्वी को कंट्रोल करना चाहता है? अगर आप, मैंने एक बुक लिखी, उस बुक के अंदर मैंने लिखा कि यरूशलेम जो है वो पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। यरूशलेम इज़ द सेंटर ऑफ द ग्लोब। तो मैं अमेरिका में प्रीच कर रहा था, मेरे कुछ अमेरिकन फ्रेंड ने बोला कि दिस थिंग इज़ नॉट साइंटिफिक व्हाट यू आर प्रीचिंग, इसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता। आई एम टॉकिंग अबाउट 2002 या 3 की बात है ये। लेकिन आप हैरान होंगे, 2010 में नासा की एक रिसर्च आई जिसमें उन लोगों ने ये माना कि यरूशलेम जो है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं मैं, खुद आप पढ़िएगा। इज़िकियल नबी की किताब, उसका 38 अध्याय, उसका 12 वचन। इज़िकियल 38 वर्स नंबर 12। यहाँ लिखा, टू टेक अ स्पॉयल एंड टू टेक अ प्रे, टू टर्न दाइन हैंड अपॉन द डेसोलेट प्लेसेस दैट आर नाउ इनहैबिटेड एंड अपॉन द पीपल दैट आर गैदर्ड out of the nations which have gotten cattle and good that dwell on the navel of the earth. Hallelujah. जो पृथ्वी की नाभि पे बसते हैं। उर्दू की बाइबल में इसे ज़मीन की नाफ कहा गया है, इज़राइल को। हालेलुया। यहाँ पे वास करते हैं। हालेलुया। मैं बहुत स्ट्रांगली ये बात मानता हूँ और बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल और साइंटिफिक फाइंडिंग्स मैंने स्टडी की हैं, अध्ययन की हैं,
जो ये मानती हैं कि जो गार्डन ऑफ ईडन था, अदन का बाग था, वो यरूशलेम में ही था। यरूशलेम में ही वो नदी बहती थी और वो नदी आगे 4 हिस्सों में बढ़ जाती थी। यूफ्रेटस, टिग्रिस, गिहोन एंड पिशोन, 4 दरियाओं के अंदर बट जाती थी वो। हालेलुया। और उसमें से एक नदी अभी जैसे अलौकिक रीति से गायब है, लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्टों ने और कुछ लोगों ने गूगल इमेजेस लेके ये अनुमान लगाया है कि उसकी कुछ ट्रेसेस जो हैं वो सऊदी अरेबिया के डेजर्ट में हैं। किसी समय वो वहाँ पे थी। हालेलुया। और यरूशलेम से ये चारों के चारों दरिया निकलते थे। आपको मालूम, अदन का बाग परमेश्वर ने प्रोटेक्ट कर दिया। चरबिम आया, एक चरबिम, और एक सोड घूमती है उसके चारों ओर, इसलिए कि परमेश्वर नहीं चाहता कि गार्डन ऑफ ईडन में बदरूएं, शैतानी आत्माएं, गंदी दुष्ट शक्तियां उस बाग के, उस अदन के बाग में घुसें। परमेश्वर, अगर आप उसके वचन को पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 21-22 अध्याय में, वहाँ आप देखते हैं कि नया यरूशलेम स्वर्ग से उतर के नीचे आ रहा है। एक बनी बनाई हुई सिटी है, रेडीमेड, जिसको बनाने वाला यहोवा है। 1600 मील लंबी है, 1600 मील चौड़ी है, 1600 मील ऊंची है, लगभग 2100 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है। क्यूबिकल सिटी है, ब्यूटीफुल क्यूबिकल सिटी, ऊपर से उतर के नीचे आ रही है। कहाँ पे आ रही है? बिल्कुल एग्जैक्टली यरूशलेम के ऊपर। वो है नया यरूशलेम। हालेलुया। और एक और जगह है जिसका जिक्र बाइबल में है, नया यरूशलेम, सियोन, जायन, सियोन का पहाड़। सियोन के पहाड़ पे मेमना बैठेगा, यीशु मसीह, और वचन में लिखा है 1,44,000 उसके संग संग होंगे। और उसके पहाड़ के ऊपर बैठने का अधिकार बहुत पवित्र धर्मी लोगों को, और ऐसा मेरा अनुमान है जो मसीह के लिए शहीद हुए हैं, धर्मी पवित्र लोग, उनको मिलेगा। सभी लोग सियोन के पहाड़ पे वास नहीं करने पाएंगे। फिर दूसरे रैंक पे आएगा नया यरूशलेम। फिर वचन में लिखा नई धरती और नया आकाश। इन सब में विश्वासी लोग रहेंगे। ये मत सोचिए कि सभी विश्वासी लोगों को एक समान अधिकार मिलेगा स्वर्ग में, या जो आने वाली दुनिया है उसमें। आने वाली दुनिया में यहोवा परमेश्वर अपने लोगों को, किसी को चांसलर बनाएगा, किसी को गवर्नर बनाएगा, किसी को हाकिम बनाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इसको 10 शहरों के ऊपर हाकिम बना दो, इसको 5 शहरों के ऊपर हाकिम बना दो, और जिसने अपने तोड़े को छिपा दिया था उससे छीन लो। उसको किंगशिप, डोमेन, चांसलरशिप, रूलरशिप नहीं मिलेगी उनको। कुछ लोग साधारण नागरिक होंगे स्वर्ग में, कुछ लोग शाही लोग होंगे, रूल करेंगे, रेन करेंगे। और आपको मालूम, हमारी जो देहें होंगी, शरीर, हमारे शरीर का नूर भी फर्क फर्क होगा। जैसे आप अब प्रभु के लिए जी रहे हो, इस पे डिपेंड करेगा आपके शरीर का जलाल कैसा होगा। प्रभु के वचन में लिखा है, दानियल नबी कहता है, जो दूसरों को धर्मी बनाते हैं वो परमेश्वर के अंबर में तारों की तरह चमकेंगे। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में प्रेरित पौलुस अलग अलग तरह के नूर की बात करता है, शरीरों की बात भी करता है। पृथ्वी के शरीर अलग हैं, स्वर्ग के शरीर अलग हैं। स्वर्ग के शरीरों का अलग अलग जलाल है, अलग अलग नूर है, अलग अलग ग्लोरी है। हालेलुया। सभी की ग्लोरी एक जैसी नहीं होगी, सबको यीशु मसीह की एक्सेस एक समान नहीं मिलेगी। हालेलुया। ये निर्भर करता है आप अब अपने शरीर के ऊपर जय पाते हो, शरीर की वासनाओं पे, शरीर की कामनाओं के ऊपर विजयी जीवन जीते हो। अपने विचार जो आपके अंदर आते हैं वो गंदे हैं, घिनौने हैं, व्यभिचार से, काम वासना से भरे हैं, लालच से भरे हैं, संसार की मटेरियल चीज़ों की खोज ललक से भरे हैं, या यीशु मसीह के प्रेम से भरे हैं। कैसे विचार हैं आपके अंदर, कैसी कल्पनाएं हैं, कैसे ख्याल हैं, कैसी आपकी ख्वाबगाहें हैं। ख्वाब कैसे आते हैं आपको?
कैसा आपका नैतिक जीवन है, कैसा आपका आत्मिक जीवन है, कैसा आपका आचरण है, कैसा व्यवहार है, किस तरह का जीवन जी रहे हो। शरीर पे जयवंत होते हो, इस संसार की अभिलाषा पे जयवंत होते हो, शैतान के छल छिद्रों के ऊपर जयवंत होते हो, विजयी जीवन जी रहे हो या हारा हुआ जीवन जी रहे हो, वचन से भरा हुआ जीवन या संसार की कामनाओं से भरा हुआ जीवन, पवित्र आत्मा की आग से भरा हुआ जीवन या बुझे हुए चिरागों की मानंद जीवन, सचमुच परमेश्वर की लपट बन के जीते हो या एक मजहबी धर्मी ईसाई जीवन जी रहे हो। अपना पैसा, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपने रिसोर्सेज यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल कर रहे हो या संसार के लोहा लंगड़ इकट्ठा करने की दौड़ में प्रतिदिन दौड़ रहे हो मूर्खों की तरह। किस प्रकार का जीवन जी रहे हो आप? शरीर पे जय पाते हो, संसार पे जय पाते हो, शैतान पे जय पाते हो, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, इनके ऊपर विजयी होते हो। प्रभु यीशु 3 बातें कहते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं जो फल लाए, फल पैदा कर रहे हो अपने जीवन से। फिर यीशु मसीह कहते हैं जो जय पाए, विजयी जीवन जी रहे हो, अंदर से, विचारों में, कल्पनाओं में विजयी जीवन, जयवंत जीवन जी रहे हो, जो जय पाए। फिर यीशु मसीह कहते हैं जो वफादार ठहरे। क्या यीशु मसीह का इनकार करते हो या वफादार रहते हो? ये डिपेंड करेगा आपको कौन सा जलाल मिलेगा स्वर्ग में। सोचिए, आपका पृथ्वी का छोटा सा जीवन आपके खरबों गुना खरबों साल के जीवन को डिसाइड कर रहा है। पृथ्वी पे आज आपका जो जीवन है ये आपकी इटर्निटी को डिसाइड कर रहा है कि अनंत काल तक आपका जीवन कैसा होगा। हालेलुया। तो मैंने आपको बताया कि 4 जो रिवर हैं, यूफ्रेटिस, टिग्रिस, गिहोन, पिशोन। जो गिहोन है वो नाइल की तरफ, नाइल रिवर को गिहोन कहा जाता था, नील दरिया, जो इथियोपिया में जाता है, 7 हिस्सों में बट जाता है और उसके बाद फिर मेडिटेरेनियन सी में गिर जाता है। टिग्रिस को हिडकेल भी कहा गया है, ये ईरान इराक की तरफ निकलता है। हालेलुया। पिशोन जो है मिस्टीरियस दरिया है। हालेलुया। ये जो शहर है अदन का बाग, इसके सेंटर में था जीवन का दरख्त। हालेलुया। जिंदगी देने वाला दरख्त। तो जो शैतान है, मैं पूछ रहा था आपको कि वो कहाँ अपना हेडक्वार्टर बनाता है। नूह के फ्लड के बाद क्या होता है? निम्रोद नाम का व्यक्ति खड़ा होता है, पूरी दुनिया को इकट्ठा करता है। वो पहला वर्ल्ड लीडर है, शैतानी, हाइब्रिड है, और बदरुओं के संग राफ्ता रखता है, शैतानी आत्माओं के साथ। हर तरह की शैतानी जादूगरी की पद्धति उसने सीखी है और वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर आता है, जो अब लेकर आ रहे हैं इलीट लोग, फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाटी, दुनिया को चलाने वाले लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आ रहे हैं। ऑर्डर आउट ऑफ कैओस, जो अमेरिकन डॉलर के ऊपर लिखा है। अमेरिकन डॉलर पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, 17वीं सेंचुरी में लिखा गया था। ऑर्डर आउट ऑफ कैओस लेकर आना चाहिए। अभी पृथ्वी पे कैओस फैलाएंगे, वायरस, बीमारियां, इकोनॉमी गिर जाएगी बिल्कुल दुनिया की, पॉलिटिकली बैंकरप्ट हो, पॉलिटिशियंस के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, वॉर्स आ जाएंगी, लड़ाइयाँ होंगी, फैमिन पड़ेंगे, अकाल आएंगे, पेस्टिलेंसेस, बीमारियाँ ऐसी आएंगी कि डॉक्टर्स अपने हाथ खड़े कर देंगे। फिर वो आएगा जो पूरी दुनिया में पीस लेकर आएगा, शांति लेकर आएगा। पृथ्वी के मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सभी उसके आगे झुक जाएंगे और वो पूरी दुनिया में 3.5 साल के लिए झूठी शांति लेकर आएगा। लोग उसके आगे झुकेंगे सब। वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को बना रहा था निम्रोद। निम्रोद ने 5 शहर बनाए। मैं फिर उसकी शिक्षा आपको दूंगा निम्रोद के 5 शहरों के विषय में। उनमें से एक शहर था बेबीलोन। बेबीलोन उसने शहर बनाया। हालेलुया। आपको मालूम, कुछ लोग कहते हैं कि बेबीलोन, बैबल का मतलब होता है कन्फ्यूजन, लेकिन अगर आप उस वर्ड को रूट में जाके स्टडी करेंगे, बैबेल का मतलब होता है द गेट ऑफ गॉड। द गेट ऑफ गॉड, परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। वो जो
बना रहा था बुर्ज जिगरॉट। वो एक सेक्रेड स्पेस था ताकि सेकंड हेवन में, जो इफ्सियों की पत्री 6:12 में प्रेरित पौलुस लिखता है, प्रधानताएं, हुकूमतें, इख्तियार, वो शैतानी शक्तियां नीचे उतरें उस सेक्रेड स्पेस से। और दूसरी उसके दिल में ये बात थी निम्रोद के कि अब अगर यहोवा परमेश्वर दोबारा बाढ़ भेज देगा, जल प्रलय भेजेगा, तो हम बुर्ज के ऊपर जा चढ़ेंगे और हम बच जाएंगे जल प्रलय से। लेकिन उसको ये नहीं मालूम कि परमेश्वर ने नूह से ऑलरेडी वाचा बांध ली है। अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 9 अध्याय के 11, 12, 13 वचन में, यहोवा परमेश्वर ने नूह से वाचा बांध ली आ गई और कहा अब मैं जल प्रलय से दुनिया का नाश नहीं करूंगा। लेकिन कैसे करूंगा? दूसरा पतरस 3 अध्याय का 6-7 वचन पढ़ लीजिए। परमेश्वर कहता है मैं आग से दुनिया का नाश करूंगा, अब आग से। हालेलुया। तो उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय 1 से लेकर 9 वचन के अंदर एक भाषा है, एक बोली है, लोग इकट्ठे हैं, लोगों का मन एक है, विचार एक हैं, लोगों का मिशन एक है, विजन एक है, दर्शन एक है। वो निम्रोद की लीडरशिप के नीचे इकट्ठे हैं और बाबुल में दुनिया का पहला न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। बाबुल जो है दुनिया के झूठे सिस्टम, धर्मों, पंथों, दुनिया के अंदर जो कुछ भी है उसकी जननी है बाबुल। बाबुल से सब कुछ पैदा होता है। हालेलुया। यरूशलेम, बिल्कुल तनुजा सेठ जी, यरूशलेम यहोवा का हेडक्वार्टर है, लेकिन बाबिलोन शैतान का हेडक्वार्टर है। हालेलुया। तो बाबिलोन को, बाबिलोन 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 पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे। फिर किसी समय बाबिलोन के कल्ट क्या क्या निकले उनके ऊपर हम मनन करेंगे और गहराई से मनन करेंगे। तो जो दर्शन देखता है नबूकदनेस्सर, और जो दर्शन दानियल देखता है, जो दर्शन जकरिया की और एजिकियल की किताब में है, वो उन जानवरों के विषय में, जो बीस्ट हैं या किंगडम है। वो जो मूर्ति है उसका जो गोल्ड है, सारा सर जो गोल्ड का है, वो बाबिलोन है, नबूकदनेस्सर। फिर मीड्स एंड पर्शियंस हैं, मीड्स एंड पर्शियन चांदी के हैं नीचे। फिर ग्रीक लोग हैं जो पीतल के हैं नीचे, पीतल तांबे के, और टांगे जो लोहे की हैं वो रोमन एम्पायर है, और जो पाँव हैं वो लोहे और मिट्टी के मिक्स्ड हैं। वो अभी जो दुनिया आ रही है हाइब्रिड, नई गवर्नमेंट आ रही है, नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, ये वायरस उसकी सेटिंग करने में लगा है। आपको मालूम, हर चीज़ को नए ढंग से डिफाइन किया जा रहा है। हालेलुया। चीज़ों की वैल्यू, डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो आप ध्यान दीजिए, जो बाबिलोन की किंगडम थी नबूकदनेस्सर की, उसका हेडक्वार्टर कहाँ था? बाबल में। जो मीड्स एंड पर्शियन, पर्शिया ईरान है, इनकी जो गवर्नमेंट थी, इनका हेडक्वार्टर कहाँ था? बाबिलोन। अलेक्जेंडर यूनानी था, ग्रीस का था, लेकिन उसने अपनी किंगडम का हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? बाबिलोन। 4 जो वर्ल्ड एम्पायर आई, उनमें से 3 का हेडक्वार्टर जो था वो कहाँ था? बाबुल में था। हालेलुया। बाबुल में, बाबुल बाबुल बाबुल, प्रकाशित वाक्य में बाबिलोन 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 पढ़ते हैं ना आप, बाबिलोन। अंत में क्या होगा? हाय बाबुल की नगरी गिर गई। तब जो संसार के राज्य हैं, संसार की किंगडम हैं, वो सारी की सारी हमारे प्रभु मसीह की हो जाएंगी। हालेलुया। ये बाबिलोन जो है, ये एक शैतानी सिस्टम है पूरे विश्व के अंदर, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये सिस्टम है जो पूरे संसार के अंदर फैला हुआ है। हालेलुया। मैं आपके लिए कुछ वचन पढ़ता हूँ, दानियल नबी की पुस्तक उसके 8 अध्याय में से सुनिए। दानियल 8 अध्याय उसके 23 वचन से सुनिएगा ध्यान से। And in the latter times their kingdom, when the transgressor are come to the full, a king of fierce countenance and understanding dark sentences shall stand up, and his power shall be mighty, but nor by his own power, and he shall destroy wonderfully, and shall prosper and practice, and shall destroy the mighty and holy people, and through his policy also he shall cause craft to prosper in his hand, and he shall magnify himself in his heart, and by peace shall destroy many,
he shall also stand up against the prince of princes, but he shall be broken without a hand. Hallelujah. कौन है ये दुनिया को भरमाने वाला जो आ रहा है। हालेलुया। बाबुल के सिस्टम को दोबारा से इरेक्ट करने के लिए। बाबुल जो है वो मदर है जहाँ से सब कुछ पैदा हुआ है। और आपको मालूम, प्रकाशित वाक्य में बाबुल एक शहर है और बाबुल एक सिस्टम है और एक मिस्ट्री बेबीलोन है। 3 बाबुल हैं, एक शहर है, एक सिस्टम है और एक मिस्ट्री बेबीलोन है। प्रकाशित वाक्य में ये उत्पत्ति से शुरू हो रहा है और प्रकाशित वाक्य तक चल रहा है, क्योंकि ये शैतान और अंधकार के राज्य की फाउंडेशन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये एस्टैब्लिश हो रहा है आपकी और मेरी आंखों के आगे। इसलिए परमेश्वर के कलाम की प्रोफेटिक बुक्स को पढ़ना, उनका अध्ययन करना और उनको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम फिर इसके ऊपर मनन करेंगे, प्रभु यीशु मसीह इसके विषय में प्रकाशित वाक्य में क्या कहते हैं, वहाँ से इसका अध्ययन हम फिर करेंगे। हालेलुया। शाम को लेकिन हम ज़बूर 1 के ऊपर मनन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय प्रभु यीशु मसीह की।